کمالہ اپنی تینوں بیٹیوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ بیوی کو دنیا سے گزرے کئی سال ہو چکے تھے۔ کمالہ نے اس ڈر سے دوسری شادی نہ کی تھی کہ سوتیلی ماں پتہ نہیں بچیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ تینوں لڑکیاں بڑی ہو رہی تھیں، گرچہ تینوں صورت شکل کی بہت اچھی تھیں، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی زارا بہت زیادہ خوبصورت اور ذہین تھی۔ وہ ہر بات جلدی محسوس کر لیتی تھی۔ باپ صبح سے شام تک کام پہ چلا جاتا اور لڑکیاں اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہو جاتیں۔ انہی دنوں محلے کی ایک بیوہ عورت ان کے گھر آئی اور بولی، مجھے چولہے کی تھوڑی سی راکھ دے دو۔ لڑکیوں نے اسے چولہے سے راکھ نکال کے دے دی۔ اب تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ روزانہ چولہے کی راکھ مانگنے چلی آتی۔ اس کے آنے پہ زارا کا منہ بن جاتا۔ وہ کئی بار اپنی بہنوں سے کہہ چکی تھی، اس عورت کا آنا مجھے بالکل پسند نہیں، اور نہ ہی یہ عورت مجھے اچھی لگتی ہے۔ دیکھنے سے ہی بہت زیادہ چالاک لگتی ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ راکھ کا بہانہ کر کے ہمارے گھر آتی ہے۔ بہنیں اسے سمجھاتی، ارے زارا، یوں کسی پہ ایسے بلا وجہ شک نہ کیا کرو۔ ہو سکتا ہے وہ ایسی نہ ہو جیسی تم اسے سمجھ رہی ہو۔ زارا کہتی، نہیں بھائی، پتہ نہیں کیوں یہ عورت مجھے اندر سے کھٹکتی ہے۔ اور کچھ دنوں سے کمالہ نوٹ کر رہا تھا کہ اس کے کھانے میں کہیں کہیں راکھ کی کرکر ہوتی ہے۔ وہ اس بات پہ حیران تھا کہ بچیاں پہلے تو بہت طریقے سے کھانا بناتی تھیں، لیکن اب کھانے میں کرکرا پن ہوتا ہے۔ وہ سوچتا رہا کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور ایک دن کمالہ کام پہ نہ گیا۔ وہ گھر کی ایک سائڈ پہ ایسی جگہ چھپ کے بیٹھ گیا کہ کسی کی نظر اس پہ نہ پڑے اور وہ آسانی سے سب کا جائزہ لیتا رہے۔ لڑکیوں نے کھانا بنا کے باپ کے لیے برتن میں کھانا رکھ دیا۔ اتنے میں وہ عورت آئی، راکھ مانگی اور لڑکیوں کی نظر بچا کے چٹکی بھر راکھ کمالہ کے کھانے میں ڈال دی۔ اگلے روز جیسے ہی وہ عورت راکھ لینے چولہے کے پاس گئی اور چٹکی بھر راکھ کمالہ کے کھانے میں ڈالنے ہی والی تھی کہ کمالہ نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تو میرے کھانے میں تم روزانہ راکھ ڈالتی تھیں؟ اور شانو بجائے شرمندہ ہونے کے بڑی ادا سے کمالہ کے گال پہ اپنی انگلیاں پھیرتی ہے۔ کمالہ جی، میں تو صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ تم اپنی بیٹیوں کو کتنا چاہتے ہو۔ مان گئی، تم تو اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہو۔ اور شرارت سے کمالہ کو آنکھ مارتی ہوئی چلی گئی۔ کمالہ تو جیسے اس کی اس ادا پہ مر مٹا۔ 4 دن بھی نہ گزرے کہ کمالہ اس سے نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ کمالہ کی بڑی بیٹی کی ہی عمر کی شانو کی بھی ایک بیٹی تھی۔ شروع کے چند روز تو شانو نے کمالہ کی بیٹیوں کے ساتھ جھوٹا پیار جتایا اور آہستہ آہستہ اس کے رویے میں تبدیلی آتی گئی۔ شانو اور اس کی بیٹی ٹھاٹ باٹ سے رہنے لگیں اور کمالہ کی لڑکیوں پہ زندگی تنگ ہوتی چلی گئی۔ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگی رہتی۔ کمالہ کی ساری کمائی شانو کے ہاتھ میں آتی تھی اور کمالہ کی لڑکیاں کھانے پینے کو ترستی تھیں۔ ایک روز زارا نے اپنے کام سے فراغت پانے کے بعد اپنی دونوں بہنوں سے کہا، اب تو گھر کے اس ماحول میں دم گھٹتا ہے، آؤ تھوڑی دیر کو باہر چلتے ہیں۔ وہ ماں کی قبر پہ آ گئیں اور بیٹھ کے رونے لگیں، پھر آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ اب تو یہ سوتیلی ماں ہمارے کھانے پہ بھی پابندی لگانے لگی ہے۔ اپنے ہی گھر میں صحیح سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، بھوک لگ رہی ہے، کیا کریں؟ اور قریب سے گزرتے ہوئے بزرگ نے ان لڑکیوں کی باتیں سنی۔ وہ لڑکیوں کے پاس آئے، بولے، بیٹا، یہاں سے کچھ فاصلے پر میری ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے، وہاں میں عبادت کرتا ہوں، اور جھونپڑی کے نزدیک ہی آم کا درخت ہے۔ ابھی اس پہ خوب پھل آئے ہوئے ہیں، تم لوگ آم توڑ کے کھاؤ اور اپنا پیٹ بھرو، جب جی چاہے یہاں سے آ کے آم کھا لیا کرو۔ بزرگ عبادت میں لگ گئے اور وہ تینوں بہنیں آم توڑ توڑ کے کھانے لگیں۔ پھر بزرگ کا شکریہ ادا کر کے اپنے گھر چلی گئیں۔ اب اکثر یہی ہوتا کہ جب لڑکیاں بھوکی ہوتیں تو بابا جی کی جھونپڑی کے پاس آ کے آم توڑ کے کھا لیتیں۔ شانو اس سوچ میں غرق رہنے لگی، میں تو ان لڑکیوں کو اکثر بھوکا رکھتی ہوں، پھر بھی ان کی صحت دن بہ دن اچھی ہوتی جا رہی ہے، چہرے کی چمک بھی بڑھ گئی ہے۔ اور ایک میری بیٹی ہے جس کا میں کھانے پینے سے، پہننے اوڑھنے سے ہر طرح سے خیال رکھتی ہوں، پھر بھی وہ ان کی طرح خوبصورت نہیں لگتی۔ ایک دن سوتیلی ماں شانو نے اپنی بیٹی کو ان کا پیچھا کرنے کے لیے کہا، ذرا پتہ تو کرو یہ کہاں جاتی ہیں اور آخر ایسا کیا کرتی ہیں کہ دن بہ دن خوبصورت اور صحت مند ہوتی جا رہی ہیں؟ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ یہ تینوں بہنیں آم توڑ کے کھانے کے لیے جمع کر رہی تھیں کہ زارا کی نظر اچانک اس لڑکی پہ گئی۔ وہ غصے میں تل ملا گئی۔ یہ لڑکی ہمارا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی ہے، یہ اپنی ماں سے ملی ہوئی ہے، ہماری جاسوسی کر رہی ہے۔ زارا کی بڑی بہن بولی، ارے زارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کی ماں ہم پہ ظلم کرتی ہے لیکن یہ تو ہمیں کچھ نہیں کہتی، تم خواہ مخواہ اس پہ غصہ کر رہی ہو۔ اور زارا کی دونوں بہنوں نے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا
उसे भी आम खाने को दिए, लेकिन उसने ना खाए। घर आके उसने खामोशी से माँ को सारी बात बता दी। अम्मा, ये लोग तो दरख्त से खूब बड़े बड़े आम तोड़ के खा रहे होते हैं और वहीं एक नजदीक की झोपड़ी में एक बाबा जी बैठे इबादत कर रहे होते हैं, वो भी इन्हें आम तोड़ने से मना नहीं करते। अब तो शानों का बस नहीं चल रहा था कि कैसे आम का दरख्त कटवा दे। जब कमाला घर आया तो वो सर पे पट्टी बांध के लेट गई। बोली, मेरे सर में कई दिनों से बहुत दर्द हो रहा है और किसी ने मुझे बताया है कि कब्रिस्तान के पास बनी झोपड़ी के नजदीक एक आम का दरख्त है। उस दरख्त को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ों का लेप लगाने से मेरे सर का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कमाला ने कुछ आदमियों को दरख्त काटने की मजदूरी दे दी। उन्होंने मिलकर झटपट आम का दरख्त काट दिया और उसकी जड़ें कमाला ने लाके अपनी बीवी को दे दी। और 2-4 दिन के बाद शानू ने खामोशी से कुछ आदमियों को पैसे दिए और उनसे कहा कि आम के दरख्त के पास जो बाबा जी की झोपड़ी बनी है उसमें आग लगा दो। और उन बाबा जी की झोपड़ी को उसने जलवा दिया। बाबा जी के रहने का ठिकाना भी गया। अब कुछ दिन गुजरे, शानू फिर कमाला के सामने बीमार बन के लेट गई। कमाला हर वक्त अपनी बीवी को खुश देखना चाहता था। बीवी से बोला, तुम्हारी बीमारी कैसे खत्म होगी? मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। शानू बोली, मेरी बीमारी एक ही सूरत में खत्म हो सकती है। तुम अपनी तीनों लड़कियों का खून मेहंदी की तरह मेरे हाथों पैरों में लगा दो। ये सुन के कमाला लरस गया। वो अपनी बेटियों को बहुत चाहता था। समझ गया कि उसकी बीवी उसकी बेटियों का घर में रहना बर्दाश्त नहीं कर रही। बेटियां भी घर में कहीं उसे दिखाई नहीं दे रही थीं। वो घर से बाहर निकला और उन्हें ढूंढता हुआ कब्रिस्तान की तरफ आ निकला। देखा कि तीनों लड़कियां माँ की कब्र पे बैठी रो रही हैं। कमाले का दिल भर आया। उसने बेटियों को गले लगाया। बोला, आओ आज हम लोग घूमने चलते हैं। उसने बाजार से खाने पीने की कुछ चीज़ें भी ले लीं। वो उन्हें साथ लेके गांव से बाहर आ गया। आगे एक जंगल था। कमाला ने खाने पीने की चीज़ें लड़कियों को दी। लड़कियां पिछली रात से भूखी थीं। उन्होंने चीज़ें खाईं। थोड़ी देर के लिए एक दरख्त के नीचे लेट गईं और तीनों सो गईं। कमाला उन्हें वहां छोड़ के जंगल से बाहर आ गया। उसने सोचा कि इस तरह करने से लड़कियां जिंदा तो रहेंगी, वरना सौतेली माँ तो उनकी जान लेना चाहती थी। जंगल के आखिरी सिरे पे कमाला को एक छोटा सा हिरन दिखाई दिया। उसने उसे पकड़ लिया और उस हिरन को मार के उसका खून बीवी को ला के दे दिया। वो यही समझी कि कमाला ने अपनी बेटियों की जान ले ली। अब वो बहुत खुश थी। इधर जब लड़कियों की आंख खुली तो वो बाप को वहां ना पाके बहुत परेशान हुई। जंगल में वो तीनों तन्हा बैठी जंगली जानवरों के खौफ से रोए जा रही थीं। इत्तेफाक से वहां नजदीकी 3 दोस्त शिकार खेलने आए हुए थे। बिलाल ने अपने दोनों दोस्तों को मुखातिब किया, वो देखो सामने 3 लड़कियां बैठी रो रही हैं। आओ देखते हैं बेचारी जंगल में कैसे आ गईं। उन्होंने लड़कियों से पूछा और ज़ारा ने उन लड़कों को अपनी सारी परेशानी बता दी कि किस तरह वो सौतेली माँ के अजाब में फंसी हुई थीं और बाप धोखे से उन्हें यहाँ छोड़ गया। लड़के तीनों शरीफ थे। लड़कियों को मुसीबत से निजात दिलाने के लिए बिलाल ने कहा, हम तीनों इन लड़कियों से शादी कर लेते हैं। इस तरह हम सुकून से अपने कामों पे जाया करेंगे और लड़कियां घर के काम काज कर लेंगी। बिलाल ने ज़ारा से निकाह कर लिया और शिराज और अफ़ान ने दूसरी 2 बहनों में से अपने अपने लिए दुल्हन मुंतखब कर ली और उनसे निकाह कर लिया। अब तीनों दोस्त अपने अपने काम पे चले जाते थे और ये तीनों बहनें मिलके खाना बना लेती, घर के दूसरे काम काज कर लेती। अब इन तीनों बहनों की ज़िंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजर रही थी। इत्तेफाक से तीनों के घर भी साथ साथ थे। उनकी शादी को 1 साल गुजर गया। ज़ारा एक बेटे की माँ बन गई। ज़ारा का बेटा 3 साल का हो गया था। एक रोज़ अचानक बिलाल ने शिकार पे जाने का प्रोग्राम बना लिया। शिराज और अफ़ान एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। काम ज़्यादा होने की वजह से उन दोनों ने शिकार पे जाने से मना कर दिया। अब बिलाल अकेले ही शिकार पे चला गया और फिर वापस ना आया। शिराज और अफ़ान ने ज़ारा को तसल्ली दी, जिसका रो रो के बुरा हाल था। और फिर शिराज और अफ़ान बिलाल को ढूंढने जंगल की तरफ चल दिए और फिर वो भी पलट के ना आए। तीनों बहनें परेशान थीं कि आखिर ये क्या माजरा है। एक दिन ज़ारा के दरवाजे एक आदमी आया और बोला, मैंने कुछ साल पहले तुम्हें जंगल में देखा था। तुम मुझे बहुत पसंद आई थी। तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि अब तो तुम्हारा शौहर भी लापता है। वो वापस लौट कर नहीं आएगा। ज़ारा एकदम गुस्से में आ गई। उसने उस आदमी पे खूब गुस्सा किया। शोर की आवाज़ सुन के उसकी बहनें भी घर से बाहर आ गईं। वो आदमी बोला, तू मुझे नहीं जानती, मैं एक जादूगर हूँ। तुम लोगों के शहर को मैंने पत्थर का बना दिया है। और जादूगर ने फौरन ज़ेरे लब कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और ज़ारा देखते ही देखते एक बंदरिया में तब्दील हो गई।
वो आदमी उसे अपने साथ लेकर चल दिया। ज़ारा की बहनों ने अपनी बहन को उस आदमी से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहीं। इस बात को कई साल गुजर चुके। ज़ारा की बहनों ने उसके बेटे को पाला। ज़ारा का बेटा सागर भी अब जवान हो चुका था। खालाओं की ज़बानी उसे सारी हकीकत का पता चला तो बोला, खाला मैं अपने माँ बाप और खालुओं को ढूंढ के लाऊंगा कि वो कहाँ हैं। मैं जादूगर की कैद से सबको रिहाई दिलवाऊंगा। खाला बोली, बेटा मैं तुम्हें एक अंगूठी दे रही हूँ, इसे तुम पहन लो ताकि तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान सके। ये अंगूठी तुम्हारी माँ ने अपनी शादी के बाद तुम्हारे बाप के लिए बनवाई थी। इस पे तुम्हारे बाप का नाम लिखा हुआ है। एक रोज सागर इधर उधर भटकते हुए एक जंगल की तरफ से गुजरा जहाँ पत्थर के मुजस्सिमे खड़े थे। वो थक के एक दरख्त के पास बैठ गया। वो अपनी सोचों में गुम बैठा था कि एक बुजुर्ग भी उस तरफ आ निकले। ये वही बुजुर्ग थे जिनकी झोपड़ी सौतेली माँ ने जलवा दी थी। उन्होंने सागर से कहा, बेटा ये पत्थरों के बड़े बड़े मुजस्सिमे जो तुम देख रहे हो, ये जादूगर ने अपने जादू से आदमियों को पत्थर बना दिया। और उस जादूगर की कैद में एक औरत भी है जिसे उसने बंदरिया बना दिया है। सागर समझ गया कि यकीनन ये उसकी माँ होगी। सागर ने बुजुर्ग से जादूगर का ठिकाना पूछा और फिर वो वहां पहुंच गया। वो किसी तरह वहां मौजूद लोगों की नजर बचा के एक ऐसी जगह पहुंचा जहां दरख्त से एक बंदरिया बंधी हुई थी। सागर ने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी उसके सामने कर दी। बंदरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन इंसानों की जबान में बोली, बेटा जादूगर किसी भी वक्त आ जाएगा। बस इतना सुन लो कि उस जादूगर की जान एक तोते में है। जिस जंगल में पत्थर के मुजस्सिमे हैं वहाँ एक गार है जिसमें एक पिंजरा है, उसमें तोता है। सागर ने माँ को तसल्ली दी और जंगल में आके गार ढूंढने लगा। इतने में वो बुजुर्ग सागर की जिनसे पहले मुलाकात हुई थी वो भी उस तरफ आ निकले। सागर ने उन्हें अपने आने का मकसद बताया। बुजुर्ग ने सागर को एक तावीज़ दिया और कहा, बेटा इसे अपने बाजू पे बांध लो या गले में डाल लो, इससे तुम्हें अपना मकसद पाने में आसानी रहेगी। सागर ने ऐसे ही किया और सागर को एक गार में तोते वाला पिंजरा मिल ही गया। उसने तोते को उसमें से निकाला, गार से बाहर आ गया। उसने देखा कि जादूगर बड़ी तेजी से भागता हाँफता सागर की तरफ चला आ रहा है और बोला, ये तोता मुझे दे दो। सागर ने कहा, मैं ये तोता उस वक्त तुम्हें दूंगा जब तुम मेरी माँ को मेरे हवाले करोगे जिसे तुमने बंदरिया बना दिया है। अभी इसी वक्त उसे यहाँ लाओ वरना मैं इस तोते को मार दूंगा। जादूगर जरा सी देर में सागर की माँ को वहां लेके आता है। सागर गुस्से से चिल्लाया, अब इसे वापस इसकी असली हालत में लाओ। जादूगर ने जमीन से मिट्टी उठाई और जेरे लब कुछ पढ़ा और फिर बंदरिया की तरफ वो मिट्टी उछाल दी। अब ज़ारा अपने असली रूप में आ चुकी थी। सागर ने कहा, अब ये सारे पत्थर के मुजस्सिमों को इनकी अपनी असली हालत में लाओ। जादूगर बोला, बस इतना काफी है, तुम इस औरत को अपने साथ ले जा सकते हो। और सागर ने फौरन ही तोते का एक बाजू खींच के उसके जिस्म से जुदा कर दिया। जैसे ही तोते का पर उसके जिस्म से हटा, जादूगर बाजू पकड़ के दर्द से चिल्लाया, अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? सागर जल्दी से बोला, मैंने जो कहा है उस पे फौरन अमल करो, नहीं तो ये तोता गया। और सागर ने तोते की गर्दन मरोड़ना शुरू कर दी। अरे रुको! जादूगर की आवाज़ आई और लम्हे भर में वो सारे मुजस्सिमों में जान आ गई और सागर ने वक्त ज़ाया किए बगैर तोते की गर्दन मरोड़ दी। जादूगर उसी वक्त मर गया। सब अपने अपने घरों को चले गए और यूं ज़ारा और उसकी बहनें दोबारा से खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगीं।